Okay, so today's topic is extension program planning and evaluation, that is steps and importance. So there are many terminologies under the topic extension program planning and evaluation, like what is program, what is extension program planning, and what is planning. So separately we will see the definition of these. So first is what is program. So according to the definition, a set of related measures or activities with a particular long-term aim. So there are some keywords like related measures or activities and particular long-term aim. Okay, so if we take an example, like if we take an example of your degree, like BFSC, Bachelor's of Fisheries Degree Program. Okay, BFSC, Bachelor's of Fisheries Degree Program. It is a program of 4 years. So it is a 4 year means long-term aim. What is the aim? To obtain the degree of Bachelor's of Fisheries Sciences. Okay, so to obtain that degree, you will have to complete some activities like exam and practical exam, theory exam, and means to evaluate your progress, we conduct short quizzes also. So these are the activities, and these activities are related for what? To which? To complete the degree. So these are what are the related activities? Related activities are exams, your study, and the quizzes are the related activities to complete your degree program, which is a long-term aim. So what is the program? A set of related activities. In any program, all the activities are related to each other. Okay, these are the step-by-step activities to complete a particular aim, which is a long-term aim. The aim could be of 1 year, 2 years, 6 months also. Okay, so this is the program. So next is extension program. So if we talk about extension, so in extension we generally we are concerned with the rural people who are living in the rural areas. Okay, remote areas. So according to the definition, according to Kelsey and Herne, they are the philosopher, or they are the writers who participated in the extension education. So according to them, an extension program is a statement of situation, objectives, problems, and solutions. It is relatively permanent but requires constant revision. So it is a statement of situation. Situation means what? Whenever you go in any rural village or in rural area and talk with the people, so every village or every place has a situation. The situation may be helpful or it may be hostile. So means situation, if we define the situation, so if you go in any rural area and find that there is a problem of income, like people, they don't have less income, or the education is not up to date, people are not educated, there are several problems persist. Okay, so these problems are the situations for you. Okay, then objective. So according to the situations or according to the problems, you formulate some objectives. What kind of objective? Objective to solve those problems. Like if the village or the area having the problem of unemployment or the problem of illiteration, people are not literate. So to eradicate the problem of unemployment or to make people illiterate, we have to set some kind of objectives. Okay, these objectives may be long-term objectives or short-term objectives.
So why we are setting objectives? To solve the problems or to tackle the situations which the people of rural areas are facing. Next is again like problems. So when you go and in any rural area and you observe the situation, so after observing the situation you come out with some results. The results may be good or may be bad. If the result is good, so you it may be like people are educated and they are getting the enough profit of their produce. They are producing handsome amount of crop. They are getting the handsome amount of what to say, they are getting the handsome amount of rupees of their production from the market. So these are the good conditions, but side by side there may be some bad situations. Situation in the form of problem, like the problem of unemployment, like the problem of education, okay, the problem of sanitation, the problem of health care. So these are the problems, and according to the problems we make the objectives to solve these problems. Okay, now and the solution to tackle those problems, we make the go through with some planning, with some programs to solve those problems. So this is the, so what is the extension program? Extension program is the statement of situation, objective, problem and solution. So if you go in any rural village and you observe the situation of that village, so you will get some problems, and according to that problems you make some objectives to solve those problems. So this is the extension program. Okay, now it is relatively permanent but requires constant revision. What does it mean? It means if you found 2 or 3 problems and you choose one problem out of them and you solved it, okay, but there is still remaining many problems. So after solution of one problem, you will take the another problem and you will try to solve it. Okay, so it is permanent but requires constant revision. Means the process is never ending. If one problem is solved, there may be some other problem which you will have to solve. Okay, so this is the extension program. Simply it is a statement of situation, objective, problem or solution. So you can for remembering, you can make a short form SOPs, SOPS. S stands for situation, O stands for objective, P stands for problem, and again S stands for solution. Okay. Then planning. What is planning? Planning, it is a process which involves studying the past and present in order to forecast the future, and in the light of that forecast determining the goals to be achieved and what must be done to reach them. Okay, so what is planning? Planning is a process which involves the study of past. Okay, like if you go in any rural village, so to understand the working pattern of that village, like the cropping pattern, like the migration of the rural people, why they migrate, okay, what kind of soil it is, what is the condition of rain. Okay, so for studying these things you will have to go to the past. In last 5 years, 4 years, 3 years, what are the situations which are persisting in that village. Okay, and present means if the soil condition is like this, so farmers are showing this kind of crop, or if there is unfertile land, so to utilize that unfertile land, farmers are doing fish culture. They are making small ponds and they are culturing the fishes. So this is a part, studying of past and present is a part of planning in order to forecast the future. Okay, so if we take an example here, so if you went, suppose if you went in any
village and there is a problem of unemployment, so there may be several reasons, like people, they are not educated, that's why they are not getting the employment. Okay. And means unemployment means the people have the low income status. There may be many reasons of low income status, like the low production from their farm. Okay, if they are culturing fishes, so the growth of the fishes are not good. They are not attaining the suitable or table size length. So uh, in the light of these past and present situations, you forecast your objective, means in future what you will do, so that people, they uh, they may solve these problems, or you help people to solve these kind of problems. Okay, so this is the planning. Now, program planning. What is program planning? Program planning is, it is a decision making process. Decision making process means after what to say, after setting the objectives, after setting the goals, what things we should follow so that we can achieve that objectives or that our goals. So it is a decision making process. We are making decision, we are making we are doing activities. Okay, we are making decision that this person will do this kind of work, this person will do this kind of work. So it is a decision making process. Analysis of the situation and problems, like in the previous slide I said that it is analysis of situation means what kind of cropping pattern is there, people are employed or not. Okay, what kind of problems they are facing, then evaluation of the alternatives to solve these problems. Okay, so after the analysis you come out with 3 or 4 problems or many problems. So to tackle those problems you will have to select the most common problem which most of the community person are facing, because because most of the people are facing that, so it will be the most important problem which you will have to solve on the priority basis. Okay, so now what happens to solve any problems, there may be various paths to solve the problems. Okay, where various alternatives to solve the problems. So from those alternatives or those among those paths, you will have to choose those solutions or those paths on which most of the community people are agreed. Okay, why agree? Because if they are agree on that path, so people will participate by themselves, and if people are participating by themselves there, so there may the chances of of success of that program or that tackle, the chances of tackling that problem will increase. Okay, so next point is, by the cooperative effort of people, official and non-official. Look, if you are going to solve any problem, so it is very difficult to tackle that problem lonely. If only you are doing the work, and you suppose that you can singly handle the problem, so it is very difficult. Okay, and if people and some government officers and non-officials, in non-officials who we can include, we can include NGOs, we can include self-help groups. Okay, or other voluntary organizations who come voluntarily and participate in the problem of solving in the solving of that problem. So this is the program planning. Now, evaluation. So what is evaluation? Process of determining the extent to which we have been able to attain our objective. So it is one kind of examining the things,
Okay, let's try to understand with an example. Suppose in your 4-degree program, time to time we conduct quizzes, we conduct exams. So by conducting quizzes or by conducting exams, what we are doing, we are evaluating that students are studying or not. And if some student is not studying or he is not able to learn the things, so what are the problems? Okay, so by taking the quizzes and by taking the exams, we just evaluate a student that which student is good or which student is not good in the study. And there are two things. One is evaluation and one is monitoring. Monitoring is separate from the evaluation. What is monitoring? Like in evaluation, we conduct quizzes and exams time to time to evaluate the progress of the students. And in monitoring, what is monitoring? It is day to means keeping the day-to-day activities, like after taking a class, if a teacher is asking with the student some questions, okay, like a teacher, if a teacher has taken one hour class and at the last of the class he asks some questions to the students to check either they have understood the topic or not. So if he is doing daily this kind of activities, he is daily asking questions after the class, so he is doing monitoring, not he is not doing the evaluation. Evaluation, what we do, evaluation is the process which we do after the completion of any project or program, or after some time, like after the means if there is like what we do, what means we do midterm exam and then final exam. So midterm exam and final exam the part of evaluation. Okay, then in short, evaluation is a process that critically assess, test and measure the design, implementation and the result of the project or program in the light of objective. So what was the objective? The objective was to occupy the degree, and to occupy the degree we conduct the exam, and we conduct the midterm exam, we conduct the quizzes. So these are the parts of evaluation. Okay, one thing is more, that evaluation, most of the time evaluation is done by either internally or means हेलो externally. Okay, just like external exam हेलो and midterm exam. But hello, हाँ सर, हिंदी में भी समझाइए सर, हिंदी sorry, इंग्लिश दोनों ही सर। हाँ अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी। सो क्या है कि एक इवेल्युएशन होता है और एक जो होता है हमारा मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग में क्या होता है, अगर कोई टीचर है वो क्लास लेने के बाद में स्टूडेंट से पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और स्टूडेंट्स उसका जवाब दे रहे हैं, हो सकता है जवाब दे ना दे पाए, ठीक है, तो ये क्या है, मॉनिटरिंग है, ये रोज रोज हो रही है। इवेल्युएशन क्या है हमारा, ये या तो प्रोग्राम या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके पूरा कंप्लीशन होने के बाद में ये इवेल्युएशन होता है, या फिर मिड मिड प्रोग्राम, मतलब कि प्रोग्राम का एक स्टेज, वन स्टेज ऑफ द प्रोग्राम हैज एंडेड एंड वी आर एंटरिंग इन द सेकेंड स्टेज। सो टू इवेल्युएट, टू सी that the first stage is completely complete or not, we conduct the evaluation portion. Okay, so next is steps in extension program planning. So there are mostly 8 steps of extension program planning. Okay, you can see here, first is collection of facts, second is analysis of situation, third is identification of problem, and so on. And the last one is 8th step is recommendation and revision of the program. So
व्हाट हैपेंस मीन्स क्या होता है कि ये 8 स्टेप होने के बाद में ये जो लास्ट स्टेप आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड और नॉट, इफ द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड सो वी गो फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। मीन्स अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो हम दूसरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो दूसरे प्रॉब्लम के लिए जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव, हम हो सकता है जो भी प्रॉब्लम टैकल कर रहे थे इन 8 स्टेप्स के थ्रू, उसका कुछ ही पोर्शन, हम उस प्रॉब्लम का कुछ पोर्शन ही सॉल्व कर पाए हों। वो कैसे होगा, हम इवेल्युएशन करते हैं। ये आप आगे यू विल सी द 8 स्टेप्स इन अ ब्रॉड वे। तो अगर हम ये किसी भी प्रोग्राम का 8 स्टेप कंप्लीट कर लिए, वो प्रोग्राम सॉल्व कर लिए, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की फिर से यही पूरी साइकिल जो है 8 प्रोसेस होते हैं, 8 स्टेप होते हैं। और अगर हम किसी भी प्रोग्राम को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम वी इवेलुएट दैट वेयर वी लैग बिहाइंड, हम कहाँ पीछे छूट गए, क्या हमारी कमियां रह गई जिससे कि हम प्रोग्राम को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, जो भी हमारा प्रॉब्लम था उसको हम सही से सॉल्व नहीं कर पाए। तो इवेल्युएशन के बाद में हम फिर से पूरा वही स्टेप जो है स्टार्ट कर देते हैं। ओके, so the first step is collection of fact. Data may be collected from the available records by survey of the area, information relating to the people, their enterprise level of technology, facilities, and constants, values, etc. relevant to the program building may be collected. Okay, पहला है हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट। आप किसी भी विलेज में जाते हैं, वहां पर की सिचुएशन को देखते हैं। ओके, वहां के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेटा हैं, उसको आप कलेक्ट करते हैं। किस टाइप के डेटा, कि क्रॉपिंग पैटर्न किस टाइप का है। ओके, पीपल किस टाइप के एंटरप्राइज में लगे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है उनका। ओके, अगर अगर खेती कर रहे हैं या फिर मान लीजिए फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो फिश फार्मिंग में वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस टाइप की मशीनरी यूज कर रहे हैं। जो हमारा सॉरी जो हमारा विलेज है, वहाँ की लिटरेसी कैसी है, पीपल कहाँ तक पढ़े हैं। ओके, कितने परसेंट पीपल हाई स्कूल पढ़े हैं, कितने परसेंट कहाँ तक लोग मिडिल स्कूल तक पढ़े हुए हैं। तो इस टाइप के हम जो डेटा हैं उस विलेज के, वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कलेक्शन के बाद में क्या करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं। The data and information collected are then analyzed. This shall help in understanding the situation in its proper perspective. Okay, तो जैसे हमने क्या है, मान लीजिए कि हम किसी विलेज में गए, वहां पर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्शन के बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे कि कितने लोग वहां पर पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, और क्रॉपिंग पैटर्न किस टाइप की है। जैसे मान लीजिए कि अगर लोग बीट कल्चर कर रहे हैं, क्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, तो कितने समय के लिए उसकी क्रॉपिंग करते हैं। कल्चर कर रहे हैं, फिश कल्चर कर रहे हैं, तो किस किस टाइप की फिश कल्चर कर रहे हैं। ओके, उसका मार्केट में प्राइस उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, अच्छा मिलता है। तो इस टाइप के हम जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसको हम एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपने एनालिसिस किया, उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा किया कि हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद एनालिसिस के बाद हमको पता चला कि यहाँ की जो लैंड है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है। आप कितना भी उसमें फर्टिलाइजर डाल लीजिए, कितने भी उसमें उर्वरक डाल लीजिए, प्रोडक्शन को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, तो ये क्या है, प्रॉब्लम है वहां की एक। ओके, तो हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि वहां की लैंड फर्टाइल नहीं है, जिससे कि वहां पर जो है फार्म जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है तो मार्केट में फार्मर्स को इनकम नहीं मिल पाती है। तो वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस विलेज की है वो अच्छी नहीं है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो गई जिसको कि हमने पिक कर लिया। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ओके, सो अब जैसे कि हमने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था कि जो भी हमारा जो हमारा विलेज है वहां पर वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन है फार्मर्स की वो अच्छी नहीं है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छी करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे कि हमको 1 साल में या 2 साल में मान लीजिए जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाएंगे, और उसके बाद हमने मान लीजिए कि हमने अब क्या कर दिया कि ठीक है, क्योंकि फार्मर्स जो यहाँ की लैंड है, द लैंड इज नॉट फर्टाइल, सो वी विल गो फॉर द fish culture. Except for farming, we will go for the fish culture. And what kind of fish culture? Integrated or composite fish culture. Like if we, sorry. So what we do integrated fish culture. We do duck cum fish culture or pig cum fish culture. So so what will happen, we will utilize the unfertile land for the purpose of fish culture. Okay. तो हमने क्या किया था, एनालिसिस कर लिया सिचुएशन का, उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम एक ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो हमारा रूरल विलेज है, जो जिसका हमने सर्वे किया है, उस वहां पर जो है वहां के लोगों की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी नहीं है। ओके, सो हम क्या ऑब्जेक्टिव करेंगे कि वहां के जो रूरल पीपल हैं उनकी इकोनॉमी को अच्छा करना, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करना, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट rural area. So what will be the objective? The objective will be to improve the economic condition of that particular village or particular area. फिर क्या है हमारा, उसके बाद हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमने क्या फॉर्म किया है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस एरिया की, वहां की जो रूरल एरिया की है, उसको हमको सुधारना है, उसको हमको इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे और कैलेंडर ऑफ वर्क बनाएंगे। ओके, प्लान ऑफ वर्क क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने में कौन क्या रोल प्ले करेगा, मींस कि जो रूरल एरिया के जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या काम करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो क्या काम करेंगे, ओके, बैंक का क्या रोल होगा, ओके, मींस किस स्टेक होल्डर का क्या रोल होगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में। द प्लान ऑफ वर्क शुड बी इन रिटन फॉर्म। जो भी हमारा प्लान ऑफ वर्क था, प्लान ऑफ वर्क है, वो हमारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और ये क्या है कि क्लियरली इंडिकेट हु शैल डू व्हाट जॉब, दैट इज व्हाट द चेंज एजेंट सिस्टम मींस एक्सटेंशन एजेंट। जो भी हमारा एक्सटेंशन एजेंट आया है वो क्या काम करेगा, ओके, उसका क्या काम होगा इस प्रॉब्लम को टैकल करने में, उसका क्या रोल होगा, जो हमारे विलेजर्स हैं उनका क्या रोल होगा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका क्या रोल होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल थ्रू कंपोजिट और इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। ओके, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो एक्सटेंशन एजेंट है उसका क्या रोल होगा, फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का फिंगर लिंक सप्लाई करना, जिससे कि जो फिशेज हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ करें, ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़े। ओके, और अगर हम इंटीग्रेटेड फिश कल्चर के लिए जा रहे हैं तो हम फिश कल्चर के साथ साथ कुछ क्रॉप कल्चर भी करेंगे, हॉर्टिकल्चर करेंगे। हॉर्टिकल्चर के लिए भी हमको अच्छे सैपलिंग्स की जरूरत पड़ेगी, अच्छा प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि ज्यादा अच्छी से ग्रोथ करें, कम टाइम पे ज्यादा हमको प्रोडक्शन दे सकें। तो उनके लिए जो प्लांट सप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, उनका क्या रोल होगा, वो किस टाइप के प्लांट सप्लाई करेंगे। ओके, अगर किसी को लोन चाहिए तो बैंक, कौन सा बैंक कितना लोन देगा, कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो ये सब क्या है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स का अलग अलग रोल है। तो जो हमारा प्लान ऑफ वर्क है इसमें क्या है कि कौन सा स्टेक होल्डर का क्या रोल होगा, ये हमारा उसमें रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारा हो गया प्लान ऑफ वर्क। सेकेंड है कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। अब कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन होता है कि मान लीजिए हमारा, जैसे हम फिश कल्चर कर रहे हैं 6 मंथ के लिए कर रहे हैं या फिर 1 साल के लिए कर रहे हैं, तो किस मंथ में हम फिंगर लिंक्स को पॉन्ड में डालेंगे, फर्टिलाइजेशन किस मंथ में करेंगे। मान लीजिए हॉर्टिकल्चर उसके साथ कर रहे हैं
तो पेस्टिसाइड किस मंथ में डालना है, कैसे उसको डालना है। ओके, तो मतलब जो भी हमारा ऑपरेशन है उसकी डेट और टाइम, ओके, मंथ और टाइम जो है हम उसमें लिख कर रखते हैं। तो ये हमारा हो गया कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। द कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ऑफ वर्क एंड शैल स्पेसिफाई व्हेन द पर्टिकुलर वर्क शैल बी डन, प्रेफरेबली मेंशनिंग डेट एंड टाइम। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। अब हमने क्या है, जो हमारा प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन था, जो भी हमारा कैलेंडर था, हमने उसको बना लिया, उसको हमने सबके साथ में डिस्कशन कर लिया कि ये काम है, हमको ये करना है। ओके, अब उसको फिर क्या है, रियल हम एग्जीक्यूट करेंगे, ऑन फार्म एग्जीक्यूट करेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे कि आपने क्या किया कि फिश कल्चर के लिए आपने सबको बोल दिया, उसमें से कुछ लोग होंगे जिनको फिश कल्चर करना नहीं आता होगा, जो पूरी तरीके से उससे फेमिलियराइज नहीं होंगे, कुछ के लिए एकदम नया होगा तो उनके लिए हम क्या है, कुछ पहले ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, उसमें ट्रेनिंग में कौन ट्रेनिंग देगा, किस टॉपिक पे ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने में क्या क्या मेथड्स यूज होंगे। ओके, तो ये क्या है, हम जो भी हमारा और या फिर मान लीजिए कि हम जब फिश कल्चर करने जा रहे हैं तो उसमें क्लोज ऑब्जर्वेशन होगा, हम साइंटिस्ट को इंक्लूड करेंगे, फार्मर्स के पॉन्ड पे ले जाएंगे। ओके, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो फिर जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट होंगे उनको ले जाएंगे, पॉन्ड पे ले जाएंगे, या फिर उस एरिया में ले जाएंगे जहां पर वो हॉर्टिकल्चर की क्रॉपिंग हो रही है। तो क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ वर्क बना होगा, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो गया, इसमें क्या आता है हमारा, ट्रेनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंडक्टिंग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि किस तरीके से करना है, मार्केटिंग, मेकिंग रेगुलर विजिट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ सम of the important functions the extension agent shall perform at this stage. Okay, एक्सटेंशन एजेंट टाइम टाइम पर विजिट करेगा, साइंटिस्ट टाइम टाइम पर विजिट करेंगे। क्यों विजिट करेंगे, कि जो भी हमने उनको स्टेप्स बताए हैं, जो भी हमने फार्मर्स को प्रोसीजर बताए हैं, वो उसको सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, उसको हम सुधारने के लिए। तो ये हमारा हो गया फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क। उसके बाद क्या आ गया, हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस हो गया। मान लीजिए हमने पूरा कल्चर कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमने देखा कि हाँ फार्मर्स को अच्छी इनकम मिली है, कुछ फार्मर्स होंगे उनको उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ होगा, तो क्यों अच्छा नहीं हुआ है, क्या क्या कमियां रह गई। ओके, हम उसको कहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, तो इन सब चीजों को हम इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच हैव वी हैव एबल टू अटेन अवर ऑब्जेक्टिव्स। हम कहाँ तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको सक्सेस उसको हम पाए हैं, उसको अटेन किए हैं। ओके, सो इवेल्युएशन हो गया। इवेल्युएशन के बाद आता है हमारा रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ प्रोग्राम। रिकंसिडरेशन, हमने इवेल्युएशन के बाद में जो जो हमारे गलतियां रह गई थी, जो जो हमारे क्या कहते हैं कि जो जहां जहां पे हमने गलती की थी, जिससे कि कुछ फार्मर्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ या फिर कुछ फार्मर्स को मार्केट में उसका अच्छा प्राइस नहीं मिला, तो उस चीज को फिर हम रिवीजन करके फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो ऑन the basis of the result of evaluation, the program should be considered, reconsidered and revised if needed. अगर जरूरत है तो, अगर नहीं जरूरत है तो फिर हम दूसरे प्रॉब्लम्स को लेंगे। ओके, देन पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या है, किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हम जिनके लिए वो प्रोग्राम बना रहे हैं, फॉर whom we are making the program, we will have to include those in the program. Why we should include? Because they are the integral part of that program and they are the most important, they are the center of the program. Okay, we are making programs for them, they are the beneficiary, and until and unless we are not including the beneficiaries, the program, there is very less chances of success of that program. Okay, so people participation is of crucial importance for the success of the extension program. लोग जब तक जिनके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर उनको ही हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मान लीजिए कि हम किसी को फार्मर्स के लिए बना रहे हैं कि हम उनको जो है फिश कल्चर सिखाएंगे। ओके, लेकिन मान लीजिए कि हम पूरे विलेज के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसमें से 5-6 फैमिली ही कोई हम इंक्लूड कर पाए, या फिर 5-6 फैमिली ने ही वॉलंटियरली कहा कि आप हमको सिखाइए, बाकी लोग नहीं आए, तो फिर हमारा वो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा।
तो क्या है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने में और उसके एग्जीक्यूट करने में हमको जो है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। यही है हमारा पीपल्स पार्टिसिपेशन। ओके, सो पीपल पार्टिसिपेशन भी हमारा कई टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारा पैसिव पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन क्या है कि पीपल पार्टिसिपेट बाय बीइंग टोल्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मींस मान लीजिए कि आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें आप लोग आपने यू डिडंट कंसल्ट विद द people that we are going to conduct such type of training program, are you interested, will you join? Okay, so मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया जिसमें कि वो विलेज के लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई ज्वाइन नहीं करेगा, हो सकता है कि बहुत कम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, तो क्या है, यही हमारा पैसिव पार्टिसिपेशन है कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस हम उनको बता दे रहे हैं कि हमने ये करना, हम ये करने जा रहे हैं या फिर ऐसा ऐसा होगा, अब आपको आना है तो आइए या फिर आपकी मर्जी पर है। ओके, ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन सिर्फ वन साइडेड होता है, मीन्स कि हम वन साइडेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम उनकी तरफ से कोई भी फीडबैक नहीं ले रहे हैं। सेकेंड है हमारा पार्टिसिपेशन इन इंफॉर्मेशन गिविंग। ओके, फर्स्ट में क्या था, हमने सिर्फ लोगों को बता दिया। सेकेंड वन इज पीपल पार्टिसिपेट बाय आंसरिंग क्वेश्चन। अब क्या है कि हमने पहले वाले में कोई सर्वे नहीं किया था कि आपको किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, आप क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम गए सीधे हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन इसमें क्या है कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले पीपल, जो वहाँ के हमारी जो बेनिफिशियरी है, हमारे जो टारगेट पीपल हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, और उनका वो आंसर देते हैं। मान लीजिए कि उनके कुछ आंसर से हमको लगा कि पीपल, यहाँ के जो ज्यादातर विलेज रूरल पीपल हैं, उनको फिश कल्चर या फिर फिश डिजीज के एरिया में जो है ट्रेनिंग चाहिए, तो हम अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वी विल ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है कि पीपल का थोड़ा बहुत, जो हमारे रूरल पीपल हैं उनका थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। हाँ, जो हमारा फर्स्ट था पैसिव पार्टिसिपेशन, उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन बाय कंसल्टेशन। अब क्या है कि इसमें क्या है, हम लोगों से कंसल्ट करते हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करते हैं। इसमें क्या है, पीपल का पार्टिसिपेशन, जो हमारा रूरल पीपल है उनका रोल ज्यादा हो गया। पीपल पार्टिसिपेट बाय बीइंग कंसल्टेड एंड एक्सटर्नल एजेंट्स लिसन टू व्यूज। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई विलेज के लोग, ठीक है, उस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए हम जाते हैं, एक्सटेंशन एजेंट है वो जाकर उनसे कंसल्ट करता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, अब हो सकता है कि कोई उसमें से विलेज पर्सन निकल कर आए कि ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम ये है, उसका आपने ये सॉल्यूशन बताया, लेकिन अगर आप उसी चीज को दूसरे तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। तो क्या है कि हो सकता है कि एक्सटेंशन एजेंट जो है उसकी जो सजेशन है उसको मान करके उसके सजेशन को, जो उसके लिस्ट है जिसमें कि उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के सॉल्यूशंस है उसमें इंक्लूड कर दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें वो इंक्लूड करे ही, उसके लिए वो फोर्स नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर है पीपल पार्टिसिपेट बाय बीइंग कंसल्टेड एंड एक्सटर्नल एजेंट्स listen to views. The external agent defines both problem and solution and may modify these in the light of people response. Such a consultative process does not consent any share in decision making. Means क्या है कि वो जरूर, वो बाध्य नहीं है कि आपने जो सॉल्यूशन बताया है उसको वो माने ही। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन फॉर मटेरियल इंसेंटिव। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्सटेंशन एजेंट आया या फिर कोई साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ऐसे टैकल करना है। मान लीजिए कि उसने कहा कि हमको आपके पॉन्ड की जरूरत है फिश कल्चर में, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि फिश में जैसे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो ये डिजीज हो सकती है, कम टेम्परेचर में ये डिजीज के चांसेस हैं। तो फिर क्या है, वो आपका पॉन्ड मांगेगा और हो सकता है कि उसके बदले में भी आपको कुछ दे, हो सकता है वो आपको अच्छा सीड दे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीपल जो है, जब तक उनको कुछ मिलता नहीं, इन रिटर्न आप उनको कुछ देंगे नहीं, तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पीपल के पार्टिसिपेशन के लिए हम कुछ उनको इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव हो सकता है हम उनको सीड प्रोवाइड करें, हम हो सकता है उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें, हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज आ रही है तो उसके लिए हम उनको फ्री में जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करें।
क्या हम ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं और इन इंसेंटिव्स के लालच में ही आकर पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं तब तक तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एट द टाइम यू स्टॉप गिविंग incentives, people will not participate. Okay, they will also move out. So people participate by providing some on-farm facilities like land, labor, irrigation. क्या है, हमको फार्मर से क्या मिल रहा है, लैंड मिल रहा है, उसका उसका लेबर मिल रहा है। ओके, और हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इवन कैश इंसेंटिव्स। कभी कभी हम उसको कैश इंसेंटिव्स भी देते हैं। देयर इज लेस इन्वॉल्वमेंट एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज बाय द पीपल। द पीपल मे नॉट प्रोलॉन्ग द एक्टिविटीज when the incentives and, मतलब कि जब हमने उनको इंसेंटिव्स देना बंद कर दिया तो पीपल ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है interactive participation. Interactive, what is interactive participation? People participate in joint analysis which leads to action plan and the formation of new local institutions or strengthening of existing ones. Okay, इसमें क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट और जो हमारे रूरल कम्युनिटी है, दोनों मिलके एनालिसिस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, दोनों साथ में उसका प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ये हैंडल करने में हमको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, मींस रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लाइक फाइनेंस हो गया, ओके, अदर सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द विलेज। ओके, सो क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करना है, ये एक्सटर्नल एजेंट और जो हमारा रूरल पीपल है दोनों ज्वाइंटली करते हैं, एक साथ मिल के करते हैं। इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 50-50 दोनों का भागीदारी होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से जब जो हमारा पहला था उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था, बिल्कुल भी पीपल्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, उसके बाद थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन है, फिर नीचे जैसे हम आते जा रहे हैं तो जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। लास्ट है हमारा सेल्फ मोबिलाइजेशन। ओके, इसमें क्या है, पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इनिशिएटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन टू चेंज एजेंट। मीन्स पहले, इससे पहले में हम क्या था कि जो हमारे पीपल और एक्सटर्नल एजेंट है दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, दोनों साथ में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, साथ में उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया था, उस सॉल्यूशंस को हम कैसे मीन्स फॉलो करेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, काम किया था। लेकिन जो लास्ट है उसमें हमारे जो पीपल होते हैं वो खुद से ही खुद से ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उनका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करते हैं, उसके लिए उनको क्या क्या हेल्प चाहिए ये सॉर्ट आउट करते हैं, और सिर्फ थोड़ा बहुत हेल्प जो है वो बाहर से लेते हैं। बाकी का जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी चीजें हमको चाहिए उसको वो लोकली अरेंज करके अपना लोकली ही जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो लास्ट है उसमें जो है सबसे ज्यादा पीपल का पार्टिसिपेशन है, सबसे ज्यादा उनकी भागीदारी है। ओके, तो ये हमारा आज का था एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, और जो हमारा प्लान जो